صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد. وعن حسیف بن الحارث الصومالی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما احدث قوم بدعة الا رفع مثلها من السنة فتمسكم بسنة خير من إحداث بدعة. وعن حسان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها ثم لا يعيدها إليهم إلى يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. محترم سامعین و سامعات، حاضرین حاضرات، عزیز ساتھیوں، آپ کے سامنے دو حدیث پڑھی گئی ہے. پہلے حدیث کے راوی حضرت حسیف ابن الحارث الصومالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احدث قوم بدعة، جو بھی قوم یا جماعت کوئی بدعت ایجاد کرتی ہے، جو بھی قوم یا جماعت کوئی بدعت ایجاد کرتی ہے اور وہ بدعت سنت کے مزاحم ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس جیسی کوئی سنت کو اٹھا لیتا ہے. بس سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور سنتی کو مضبوطی سے پکڑنا بدعت ایجاد کرنے سے بہتر ہے. یہ پہلی حدیث کا ترجمہ ہے. اسی طرح دوسری حدیث جس کے راوی حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مبتدع قوم بدعة فی دینہم، جو بھی قوم یا جماعت کوئی بدعت ایجاد کرتی ہے اپنے دین کے اندر، الا نزع اللہ من سنتہم مثلہا، تو اس جیسی اللہ تعالیٰ ایک سنت کو اٹھا لے گا. ثم لا يعيدها إليهم إلى يوم القيامة، پھر اس سنت کو قیامت تک، پھر وہ سنت قیامت تک اس کے پاس لوٹ کر نہیں آئے گی. محترم سامعین، بڑے ہی افسوس اور دکھ کے ساتھ یہ بات آپ کو بتائی جا رہی ہے کہ اس حدیث کا مضمون اور خلاصہ یہی ہے کہ جب امت مسلمہ سنت پر عمل کرنے کے بجائے سنت کے بالمقابل کوئی نئی چیز کو ایجاد کرتی ہے، دین سمجھ کر کوئی نیا کام کرتا ہے دین سمجھ کر، تو اسی جیسی جو سنت موجود ہے اللہ تعالیٰ اس سنت کو اٹھا لیتا ہے امت سے. جو دوسری حدیث میں ہے پھر اللہ تعالیٰ ثم لا يعيدها إليهم، پھر اس امت کی طرف وہ سنت لوٹ کر قیامت تک نہیں آئے گی، یعنی امت اس سنت سے محروم رہے گی. آج ایک حدیث مجھے وہ یاد آ رہی ہے جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرب قیامت قریب کے زمانے میں ایسے ہوں گے کہ جیسے اندھیری رات میں مختلف بادلوں کا ٹکڑا ہوتا ہے،
कि एक टुकड़े के बाद फिर दूसरा टुकड़ा, एक टुकड़े के बाद दूसरा टुकड़ा, यानी थोड़े एक टुकड़ा हटने के बाद वक्फा ना गुजरे कि फिर दूसरा टुकड़ा आ जाए। तो ऐसे आखिरी ज़मान में फितना फसाद इतने करीब करीब आएंगे कि इंसान एक फितने से महफूज नहीं होंगे, मुतमईन नहीं होंगे, उसको ना निभा सकेंगे कि दूसरा फितना हाजिर। तकरीबन 1-2-3 साल से यही हमारे सामने मुशाहिदा है कि उम्मत फितनों पर फितनों की आजमाइश में मुब्तला हो गए हैं। एक बात जो मेरी समझ में आई वो ये है कि इतने सारे आजमाइश और मुसीबतों में उम्मत मुब्तला क्यों है। तो 2 हदीस जो ऊपर पढ़ी गई उसकी शरह को सामने रखते हुए समझ में ये बात आती है कि जब उम्मतों में सुन्नत पर अमल करना छोड़ देते हैं और उसके बिलमुकाबिल बिदअत पर अमल करना शुरू कर देते हैं, तो हदीस के ज़हन में ये बात समझ में आती है कि अल्लाह ताला उस जैसे एक सुन्नत को ऊपर उठा लेते हैं। तो इस तरह आजकल दुनिया में मुसलमानों ने इस उम्मत में ऐसी बिदअतें और ऐसे नए काम को दीन समझकर उम्मत अपना रही है, जिससे अल्लाह ताला अगर उन जैसे अगर एक सुन्नत को उठाना शुरू कर दे तो तकरीबन अब उम्मत में सुन्नत पर अमल करने वाला बाकी नहीं है। और हकीकत यह है कि उम्मत सुन्नत पर अमल करना छोड़ दी है और उसके बिलमुकाबिल जो नए चीजों हैं उसी को तरजीह देने लगी है। आज हमारे सामने जो मुसीबतों का सामना है, जो बेचैनी और बेइत्मीनानी का सबब है, वो ये है कि हमने सुन्नत को छोड़ दी। और जब उम्मत सुन्नत को छोड़ देगी तो हमेशा वो मुब्तला रहेंगे आजमाइशों में। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुन्नत को हम रुखसत कर देंगे, उस पर अमल नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि किसी तरह भी हम आजमाइशों और मुसीबतों से हम बच नहीं सकते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम सुन्नत हमारे सामने से रुखसत हो जाए और हम इत्मीनान की सांस ले, हमारे अंदर चैन और सुकून आए, ये किसी तरह मुमकिन नहीं है। मैं मिसाल के तौर पर आपके सामने एक बात कहता हूं कि एक सुन्नत है नमाज से पहले या वुजू से पहले मिसवाक करना, जो हदीस के मजमून में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौला अन अशुक्का अला उम्मती लामरतुहुम बिस्सिवाक इंदा कुल्ली सलातिन औ वुज़ुइन। एक हदीस में है कि अगर मुझे ये अंदेशा ना होता कि मेरी उम्मत पर गिरा गुजरे तो मैं उन्हें हर नमाज के वक्त, और एक हदीस में आया हर वुजू करते वक्त मिसवाक का हुक्म देता, यानी जरूरी बना देता। लेकिन अगर जरूरी बना दिया जाता तो शायद उम्मत इस बोझ को उठा नहीं सकती, इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया। इससे अहमियत मालूम होती है कि मिसवाक की कितनी अहमियत है। ये एक सुन्नत है। आज तकरीबन घरों में मिसवाक का इस्तेमाल बिल्कुल खत्म है, और जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब बंदा मिसवाक करके वुजू करके नमाज पढ़ते हैं तो वो 2 रकात पढ़ी हुई जो नमाज होता है वो बगैर मिसवाक के 70 रकात पढ़ी हुई नमाज से भी बेहतर है। ये सुन्नत तकरीबन हमने खत्म कर दी है। हमारे घरों में, हमारे माहौल और माशरे में मिसवाक करने की सुन्नत बिल्कुल नहीं है, जिससे मालूम होता है कि अल्लाह धीरे धीरे इन सुन्नतों को उठा लेते हैं। फिर हमारे बाद और उसके बाद की जो नस्लें होंगी, मिसवाक क्या चीज है मालूम ही नहीं। हर घर में देखिए एक 5 साल बच्चे से लेकर एक बूढ़े आदमी तक ब्रश करता है, यहाँ तक कि नमाज से पहले भी करके मस्जिद को आते हैं, लेकिन हमारे जेबों में मिसवाक नहीं, हमारे घरों में मिसवाक नहीं है। ये बिल्कुल जीता जागता सबूत है कि मिसवाक का राज और चलन बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो इस तरह अगर एक करके सुन्नत हमारे सामने रुखसत होती चली जाए, फिर उस कौम के अंदर भलाई कहां से आए, उस कौम के अंदर सुकून और इत्मीनान कहां से, वो कौम किस तरह महफूज रह सकती है आजमाइशों से और तरह तरह के मसाइब से? बिल्कुल मुमकिन नहीं है। इसलिए हमें यह करना है कि हर सुन्नत पर हम अमल करें, हम हर सुन्नत पर अमल करें, ताकि
हमारे सामने से सुन्नत रुखसत ना हो जाए। और हर वो चीज जो सुन्नत के मुकाबले में आए, वो बिदअत चाहे हसना ही क्यों ना हो, चाहे वो बिदअत कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, लेकिन सुन्नत के मुकाबले में उसके कोई वैल्यू नहीं। जब कौम उस सुन्नत के मुकाबले में उस नई चीज पर अमल करना शुरू कर देंगे तो अल्लाह ताला उस सुन्नत को उठा लेंगे और कयामत तक उम्मत तक वो पहुंचने वाली नहीं है। इस हदीस के शरह में मुहद्दिसीन लिखते हैं, एक मिसाल दी है कि एक इंसान एक ये है कि वो सुन्नत पर भी अमल करता है, सुन्नत पर भी अमल करता है और उसके साथ साथ वो मदरसा बनाता है या मुसाफिर खाना वगैरह बनाते हैं। ये तो नूरुन अला नूर, ये तो ठीक है कि सुन्नत पर भी अमल है और दूसरे अच्छी चीजों को भी वो करता है। लेकिन ये बात कब समझ में आएगी कि एक इंसान ही है कि सिर्फ बैतुल खला में किस तरह जाते हैं और किस तरह आते हैं, उस सुन्नत के मुताबिक वो अमल करते हैं, लेकिन कोई मदरसा नहीं बनाता है, कोई सुराय नहीं बनाता है, कोई मुसाफिर खाना नहीं बनाता है, सिर्फ बैतुल खला जाने और आने की सुन्नत पर वो अमल कर रहा है। और एक बंदा ये है जो उन सुन्नतों पर अमल तो नहीं कर रहा है मगर मुसाफिर खाना बना रहे हैं, वो मदरसा कायम कर रहा है। तो मुहद्दिसीन कहते हैं कि मुसाफिर खाना और मदरसा बनाने ये अगरचे बिदअत हसना है, लेकिन इससे बेहतर ये है, इसका मुकाबला अगर किया जाए, तकाबुल किया जाए, तो इससे बेहतर ये है जिन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल किया। तो एक सुन्नत पर अमल करना, उसके बिल मुकाबले अगर कोई कितनी भी बिदअत हसन आ जाए, मुहद्दिसीन कहते हैं कि सुन्नत पर अमल करना बदरजा औला है और बेहतर है, वजह इसके के जो बिदअत हसना है उस पर अमल किया जाए। तो ये उस सूरत में है जब कोई आदमी सुन्नत पर अमल ना करके उसके बिल मुकाबिल जो बिदअत हसना है उस बिदअत पर अमल करना चाहे, तो बिदअत हसना के मुकाबले में सुन्नत पर अमल करना कई गुना ज्यादा बेहतर है। जे जाए के बिदअत हसना तो दूर की बात है, आजकल तो लोग तकरीबन 90% बिदअत सय्या में दाखिल है, यानी बिदअत सय्या पर अमल करते हैं, तो उनके बारे में क्या ठिकाना हो सकता है। अगर सुन्नत के मुकाबले में बिदअत पर अमल किया जाए, चाहे हसना ही क्यों ना हो, तो उसकी सजा में अल्लाह ताला उस सुन्नत को उम्मत से उठा लेते हैं। तो अगर हम सुन्नत के मुकाबले में किसी बिदअत सय्या पर अमल करें तो बताइए कि अल्लाह ताला इस उम्मत में से क्या क्या चीजें नहीं उठा लेंगी। बहुत गौर और फिक्र करने का मकाम है कि आज हमारे आल औलाद, हमारे नस्ब और नस्ल में सुन्नत पर अमल करने का जज्बा नहीं है। और हम वालिदैन, अब जो पेरेंट्स होते हैं, हम लोग भी अपने बच्चों को बिल्कुल ताकीद तरगीब नहीं देते हैं कि हर काम सुन्नत पर हो। घर में दाखिल हो तो सलाम करके दाखिल हो, बैतुल खला जाए आए तो सुन्नत के मुताबिक जाए, खाना खाए, खाना खाने के बाद सुन्नत के मुताबिक अमल हो, सोने के वक्त बातचीत करना और दीगर जो काम है, छोटे से छोटे काम, बड़े से बड़े काम, हर जगह हमें यह मलहूज रखना चाहिए कि हमारा हर काम सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए। सुन्नत से हटकर कोई हमारे लिए भलाई का रास्ता नहीं है। अगर इस तरह हम सब मिलकर सुन्नतों पर अमल करें और इसका एहतमाम करें तो अल्लाह ताला सुन्नत उठाने का जो हुक्म है उसको अगर अल्लाह ताला बंद कर दिया तो सुन्नत हमारे दरमियान क़यामत तक बाकी रहेगी। और अगर इस तरह हम बिदअत पर अमल करते रहे और अल्लाह एक एक करके सुन्नत उठाना शुरू कर दे तो कुछ जमाने के बाद ऐसी हालत होगी कि पूरी उम्मत में एक सुन्नत पर अमल करने वाला नहीं मिलेगा। तो अब इस चीज को बचाने के लिए एक ही रास्ता बचा है और वो ये है कि हम सब मिलकर ये कोशिश करें कि हमारे खानदान, हमारे घर वाले, हमारी औलाद सब के सब मिलकर हर एक सुन्नत को ढूंढ कर तलब करके तहकीक करके हर एक सुन्नत पर हम अमल करना शुरू कर दे। अगर इस तरह हम अमल करते हैं तो हमारे लिए नजात का ये जरिया बनेगा और हमारे जो आने वाली जो नस्लें होंगी वो नस्ल भी सुन्नत पैरा होंगे, ना कि बिदअत पैरा होंगे। और अगर हम सुन्नत को भुला बैठे, अगर हम सुन्नत को छोड़ दे तो हमारी आने वाली कौम
ہر ایک قوم جو ہے بدعت پر عمل کرنا شروع کریں گے اور ان کے پاس صرف بدعت ہی رہ جائیں گے, سنت کی کوئی خوشبو نہیں آئے گی. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ہر ایک اس بات پر غور و فکر کرے اور سنت پر عمل کرے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بشارتیں دی ہیں سنت پر عمل کرنے کی, ان بشارتوں کا ہم سبوں کو مستحق بنائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. والحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ